Yes, okay. Good morning, everyone. So, as you know that we have already finished the chapter number, this is 12, chapter number 11. We have already finished in our last class. I hope none of you is having any problem regarding work and energy, since we have done a lot of questions also, numericals we have done, and the chapter related to energies, the energy transformations, and all that stuff. We have already done that. And for this particular chapter, as I told you, that few of the portion, because of this pandemic season, like few of the part have been related. If you have gone through the syllabus, then you must know it. If you do not know, then let me just repeat that what is deleted from your syllabus from this chapter sound. If you just go through the last page of your book, uh, last few pages where it starts with echo, reflection of sound, then echo, then you have uses or applications of ultrasound, range of hearing in humans, and structure of human ear, sonar. All these topics are already cancelled from your syllabus. Though this is not coming in your exams, but I would like you to do all of them, just because it's important that even if, because we have time also, so I would like you to do all of them. None of the topic is I am going to leave. Basically, I'll do all the topics since few of them is not coming in spite of that. Right? If any of you is having any issue regarding which topic is coming or not, then please go through the deleted that PDF which I've already sent you on the group. Please go through that. And for now, you can just remember that nature of sound and the propagation of sound, speed of sound, range of hearing in humans, ultrasound applications, reflection of sound, echo, sonar, and the structure of human ears. These are the topics which are not coming, right? So you can nicely cut them from your syllabus. Though I will cover all the topics, but since in case you want to do it in for a proper form of exam purpose, then you can leave them, right? But for understanding purpose, for knowledge purpose, I'll definitely do all of them, right? So let me just open your book. Yeah, okay. So this chapter is all about sound, right? Sound, I guess this is the first thing when you're born, this is the first thing you get to know. एक छोटा सा बच्चा भी होता है, उसको भी sound के बारे में उसको भी पता होता है कि हाँ, there is some sound coming to him. So I guess sound, light, these are those topics which you are getting faced with in very small age. जो आप जब बस पैदा होते हो तब से ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हैं, right? So in this chapter particularly, we are going to study that how the sound is getting propagated and how does it happen. Like it's moving, definitely. If I'm saying something, the sound is reaching to you, it's definitely there should be some medium and some various forms of you can say transformations are also happening along with that, because we are we are in contact because of this mobile phone. So you should understand that we have transmission lines, and then sound is converting into electrical signals, and then it's converting back into sound through your microphone or your speakers, and that's how it is coming to you. So sound is, you can say, it's a very important part of your life, right? So we are going to study about the different properties of sound. How does it happen? Echo, which is very important part, which I thought had, मुझे ऐसा लगा था like this topic would not be deleted, but somehow they have deleted this part for the sake of your easiness, I guess, right? So echo, sonar, these are few topics which we are using practically, right? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ रूम विच इज कम्प्लीटली हॉलो, अगर आप एक कमरे में हो जो बिल्कुल खाली है, देर इज नो साउंड, कोई सामान नहीं है, देन यू कैन सी वट एवर यू आर सेइंग दैट साउंड इज कमिंग बैक टू यू. बार बार आपको साउंड वही सुनाई देती है. और अदरवाइज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ हिल, अगर आप पहाड़ पे खड़े हो और चारों तरफ देर इज नो अदर स्पेस, completely blank, and then if you say something you will realize that your sound is coming back to you, right? So that was one of the property of sound. Then it is definitely, it is a bigger part of your body also, you can say.
It's a human body by which we are getting to know so much about sound. मतलब sound है, लेकिन उसका एक मेन यू कैन से एक मीडियम क्या है, बिकॉज ऑफ योर ईयर, वहां से आपको सारी चीजें सुनाई देती हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट एज आई थॉट, बट it got cut. So good thing for you. Now the question is, सबसे पहले the question that should arise in your mind is, how does sound produce? Because if you remember from the last chapter when we did work and energy, we talked about that when do we say that work has been done in physics, right? Physics, basically science mein, when do we say? So there were some conditions regarding that, in case you are having some force, and other than that you are having some displacement also in addition, right? So then only you say that some work is done, right? So those two conditions are valid only in the case of science. Otherwise, if you are reading, writing, then also you get tired. But yeah, that was not work in case of science. So what happens in this case? Here, in case of sound, how does it produce? What are the conditions that should be followed? That should be the first question, right? So ये चीज वैसे आप, I guess, few of the parts have already studied. Somewhere here and there you have got some idea. So any of you, if you would like to tell me, how does it produce? Sound. हाँ जी, sound. Vibration. Sorry. Yeah, say. You were saying right. Some of you said, I guess some कुछ बोला था मुझे. I didn't hear it properly. मैम वाइब्रेशन की वजह से मैम अलग अलग चीज से मैम जब वाइब्रेट होता है मैम टकरा के तो मैम उसकी वजह से Yeah, साउंड इज exactly. प्रोड्यूस ड्यू टू द मैम साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. Yes, true. बिल्कुल सही बात है. That's true that sound is getting produced by vibration. Like you can say, if something is getting vibrated, then definitely some sound will be produced. Now, if you think about what do you understand by vibration, so you must have studied about oscillation, if you remember. Oscillation याद है क्या था oscillation Yes, में? ma'am. Yes, tell वो me. इधर What उधर do you घूमता रहता है एक बॉल. मैम वो Yes, एक पेंडेमिक oscillation. बॉल. Let me just share my screen. All right. So if you remember oscillation, let me just draw that oscillation first. That is basically when you have a pendulum, which is the easiest example I can say. So this pendulum is going here and there. Definitely it is moving to and fro, to and fro. So it is going like this, right? And then it is coming back to the same position. Then it is going back like this, right? इस तरीके से this motion is oscillation. So what do you understand by vibration, right? Oscillation से ही vibrations आते हैं. Now let me tell you how does it happen. देखो, take the example of this pen. Assume this is the pendulum. When I am rotating like this way, right? When this is going from like mean position, say it is going in this way, here and there, to and fro motion. This is your oscillation. But when you think of vibration, it is not that big. You can say the distance covered by your bob is not that big. Vibration के केस में क्या होगा? It is like this. यही होगा vibration. हिलने लग जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि the oscillation is still there, but there is one difference that you have covered this much distance in the case of oscillation, but in the case of vibration, the distance is very, very less. It means it is a kind of to-fro motion, but the distance covered is very less. So let me just draw it. अभी आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया था नाइसली, दैट वाज ऑसिलेशन. वाइब्रेशन में क्या होगा? इट विल सिंपली काइंड ऑफ मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. अगर ये मीन पोजीशन है, तो आप कह सकते हो कि वाइब्रेशन में सिर्फ ये यहीं तक जाएगा, right? So you can say that if this is moving slowly, the distance covered from the mean position is very, very less. You can see, you can compare.
If the distance covered is very very less, then we can say that the object is vibrating, right? Oscillation में क्या होता है basically? Oscillation में ये होता है, this is the whole oscillation, one whole oscillation you can say, and vibration is like this. ठीक है? This happens very fast, though I'm not able to do it. इतना fast मुझसे हो नहीं रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो. You can understand the oscillation vibration. ये this is your vibration and this is your oscillation. Right? I hope the difference is clear between two of them. Right? Difference आपको Yes, समझ में आ गया? Yes, Okay. ma'am. ma'am. So this is all Yes, about the ma'am. vibration. Now, when coming back to the question that how does the sound produce? The sound is getting produced by vibration. That is completely true. Now my question is, बाकी चीजों में जो आपको साउंड आती है वो तो ठीक है, वाइब्रेशन होता है. वाइब्रेशन होता किस चीज का है ये बताओ. What is मैम that thing जब which is मैम कोई भी एक चीज मैम दूसरी चीज से टकराती है तो मैम शायद वाइब्रेशन होता है. मैम जो उसका फोर्स होता है वो एनर्जी वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है. हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट को इसमें यूज कर रहे हो. दैट इज अप्रिशिएबल. बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट थिंग व्हिच इज गेटिंग वाइब्रेटेड. वाइब्रेशन होता मैम किस जो चीज का? जिस चीज से टकराती है. ठीक है, जो चीज टकराई है वो पूरी हिलने लग जाती है. दैट्स ट्रू. लेकिन वो चीज भी तो किसी से बनी होगी. मैम वो मैटर. Matter, right? Precisely, if I say that, precisely I can say that it's atoms or molecules, उनका ही vibration होता है, right? कोई भी object है वो आपका बना तो इन्हीं चीजों से, atoms और molecules से ही मिलकर बना होता है. तो Yes, ma'am. सबसे जो smallest unit है as we know atom होती है, जिसमें 3 हमारे different types of charges होते हैं. So everything is made up of atoms and molecules, and when they strike to some other object. हाँ, एक और चीज अच्छी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने ये नोटिस किया होगा कि वाइब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ उसमें मतलब यू हैव टू डू समथिंग एक्सटर्नली. अपने आप चीजें वाइब्रेट नहीं होती हैं. ये तो समझ में आया फोन होगा तो आपको. अपने आप होता है. उसमें भी चीजें होती हैं ऐसी, सिग्नल्स होते हैं उसमें भी ऐसे, जो फोन को वाइब्रेशन मोड में ला देते हैं. वो चीजें होती हैं उस तरीके से. हमारे पास फंक्शनिज्म इस तरीके से होता है कि दैट द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग वाइब्रेटेड. ठीक है, वो आपकी इसमें इस तरीके के फंक्शंस होते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है. देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक एज फार एज आई थिंक कि सारी ही चीजों में आप एक्सटर्नली अगर कुछ चीजें करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट्स जनरली वाइब्रेट करने लग जाते हैं. और जब भी वाइब्रेशन होती है साउंड प्रोड्यूस होती है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें साउंड पता ही नहीं चलती है. देखो कई बार ऐसा होता है कि वाइब्रेशन होता है तो हमें साउंड सुनाई नहीं देती. कई बार सिर्फ साउंड सुनाई देती है, वाइब्रेशन नहीं होती. ऐसे तो अब आप कहोगे रिंगटोन बजती है जो विदाउट वाइब्रेशन आपने फोन में किया होगा, तो इसका मतलब तो वहां पे वाइब्रेशन नहीं है आपके अकॉर्डिंग. लेकिन ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट ट्रू. वाइब्रेशंस एंड साउंड दे आर कंप्लीटली, यू कैन से साउंड का जो बेसिस है वो वाइब्रेशन से आता है. वाइब्रेशंस होती हैं, डिपेंड्स, this condition is important, depends that the vibration may be very small or may be very high. ठीक है, जब आप सिर्फ वाइब्रेशन मोड पे रखते हो इसका मतलब कि आपने साउंड को इतना कम कर दिया है कि वाइब्रेशन होने के बाद भी आपको साउंड सुनाई नहीं देगी. ये डिपेंड करता है हमारी ह्यूमन हियरिंग रेंज के ऊपर. हमारी एक सर्टेन रेंज होती है, जो कि आपका टॉपिक कैंसिल कर दिया है फॉर सम रीजन, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट आई वुड लाइक यू टू नो, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अच्छे, जो आपको आगे हेल्प करेंगे किसी भी तरीके के एग्जाम्स में. ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है. ह्यूमन होता है. सॉरी मैम ह्यूमन में ह्यूमन का है मैम ये. हाँ ह्यूमन का ही तो लिखा है मैंने. अच्छा ह्यूमन नहीं लिखा. हियरिंग रेंज का मतलब होता है सुनने वाली रेंज. तो ठीक तो है मैम लेकिन जो वो रहता है ना मैम, बैट्स चमगादड़ और वो सब हाँ कुत्ते डॉग्स बिल्कुल रहते हैं ना बिल्कुल. तभी तो मैं मैम, वो आपको लोग ये हमसे टॉपिक बताना चाह रही थी. सुनो,
देखो होता क्या है कि हमारे ह्यूमन में एक कैपेसिटी है कि हम इससे पहले की और इससे बाद की रेंजेस को नहीं सुन सकते हैं। इसके बाद की रेंजेस को जनरली अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। इससे पहले की रेंज को क्या बोला जाता है? इंफ्रा शायद मैम, इंफ्रा इंफ्रा, राइट, इंफ्रा साउंड्स बोला जाता है। थैंक यू सो मच, मैं नाम भूल गई थी। तो इसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं और इससे पहले वाले को हम इंफ्रा साउंड बोलते हैं। दिस इज द ह्यूमन रेंज। अब आप सोचो कि इन केस वाइब्रेशन आपने प्रोड्यूस तो कर दिए, वाइब्रेशंस हुए हैं, साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा, लेकिन अगर वो साउंड इससे कम फ्रीक्वेंसी पे आपने रखा हुआ है, ठीक है, आपने अपने फोन का वॉल्यूम साउंड इतना कम कर दिया है कि वो इससे कम साउंड का है, तो डेफिनेटली आपको नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साउंड नहीं है, वहां पे साउंड है, बट यू हैव केप्ट इट सो स्मॉल दैट योर ह्यूमन रेंज इज नॉट एबल टू हियर इट। सिमिलरली बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साउंड्स, जैसे इफ आई गिव यू अ नाइस एग्जांपल, तो जैसे जो ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ देयर आर सम काइंड ऑफ प्लेट्स व्हिच आर गोइंग अप एंड डाउन, दैट्स हाउ द अर्थक्वेक इज कमिंग, राइट? So those up and down of plates that does happen, वो बहुत पहले से होने लग जाते हैं, कुछ टाइम पहले से होने लग जाते हैं, बट इट इज नॉट आवर कैपेसिटी। लेकिन ये चीजें बहुत सारे, जैसे एलिफेंट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको ये चीज बहुत पहले से पता चल जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि दे डू सम एक्टिविटीज, तो जहाँ पे जैसे जानवर वगैरह ज्यादा हैं लाइक जू में, तो उनको थोड़ा रियलाइज हो जाता है कि हाँ भैया अब अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है कि वो इससे ज्यादा की साउंड को सुन सकते हैं। हमारी कैपेसिटी नहीं है ये, तो इससे ज्यादा की साउंड को वो सुन पाते हैं। इस वजह से ही उनकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। दे डू सम काइंड ऑफ एबनॉर्मल थिंग्स लाइक बिकॉज दे नो दैट सम काइंड ऑफ डिजास्टर इज गोइंग टू हैपन, राइट? उनको ये चीजें पता चल जाती हैं, इसीलिए जनरली उनकी एक्टिविटीज में चेंज आता है। और जो ओपन में है जानवर, वो सारे अपनी जगह को बदल लेते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं जो जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, ये कुछ ऐसे चीजें होने वाली हैं। क्योंकि ये होता तो है इनसाइड द अर्थ, ये सारी चीजें पहले से होने लग जाती हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से हमें नहीं पता चलता। तो ये है ह्यूमन रेंज की कैपेसिटी, ठीक है। ऐसे ही वाइब्रेशन और साउंड, हाँ जी, यस, ओके। ऐसे ही वाइब्रेशन और साउंड के केस में भी होता है। बहुत बार सिर्फ वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं, बहुत बार आपको साउंड ही सुनाई देती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर। हमारे सेंसेशंस ऐसे होते हैं, बहुत बार सिर्फ साउंड हमें रियलाइज होता है, वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। उसका केस ये है कि हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं जो एक लेवल तक होते हैं। आपका फोन जब अच्छे से हिलने लगता है तभी आपको रियलाइज होता है, नहीं तो आप इसको चेक कर सकते हो। चेक क्या करना, आपको पता है, आप चल रहे हो, सोचो आप चलते चलते अगर आपका फोन वाइब्रेट करता है तो बहुत ही रेयरली आपको पता चलता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल शांत बैठे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, फिर आपको छोटा सा वाइब्रेशन भी रियलाइज होता है। यू नो द डिफरेंस? यस मैम। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सबको? सो यू कैन नॉट से दैट दिस इज बिकॉज दैट एक वन केस वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस, सेकंड केस वाइब्रेशन इज नॉट प्रोड्यूस। यू कैन नॉट से कि जब हम चल रहे हैं तो वाइब्रेशन ज्यादा हो गए, नहीं, और वाइब्रेशन कम हो गए। यू कैन नॉट से दैट वे, बिकॉज व्हेनेवर साउंड इज देयर, वाइब्रेशन इज ऑलरेडी intimated with that. The point is it depends that what is the capacity of your body, like the sensitivity of your body. So when you are sitting nicely, you're not doing any activity, it is very easy for your body to feel that vibration. On the other hand, if you are doing something, your hands are moving, you're walking, then it is not so easy to realize that vibration. So iska matlab ye nahi vibration nahi hai, wo hai. So you can say both things are always there. It depends on our capacity, it depends on our ability that we can hear that or we can feel that sensation, that vibration. That's how the things are varying, right? This was the basic idea. I hope you have got the idea कि कैसे कैसे चीजें होती हैं. Now next question is, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो गया वाइब्रेशंस की वजह से, ये आपको पता चल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज इट ट्रैवल? मैंने तो यहाँ से बोला है, आप तक आवाज कैसे पहुंच रही है, ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा. लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज वी हैव सो मेनी ट्रांसमिशन लाइंस अलोंग विद दिस.
and बहुत सारे signals हैं, networks हैं. So let us not talk about phone. Think about you are sitting in your class. Just imagine that you are sitting in a class and the bell is ring. Then आपको bell तो बाहर बजती है, लेकिन still you can hear it sitting in your class. How does it happen? मैम क्योंकि मैम आपको आवाज एयर कैसे प्रिंटर मॉलिक्यूल स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए वो साउंड आ जाता है. ओके, साउंड आ जाती है, लेकिन आप थोड़ा सा और दूर चले जाओ, दैट साउंड विल बी इवन लेस. वो क्यों? मैम क्योंकि मैम वो वाइब्रेट होते होते कम हो जाती है. क्या कम हो जाती है? मैम साउंड की एनर्जी. या राइट, दैट्स ट्रू. सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि साउंड है क्या. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आपके आसपास होते हैं जो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, वैसे ही साउंड भी ट्रांसफॉर्म होती रहती है. साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और मैक्सिमम टाइम्स जो साउंड एनर्जी है वो हीट में ट्रांसफर होती है. जैसे आप कॉन्टिन्यूसली बोलते रहो. जैसे मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ ड्यूरिंग द क्लास, आई एम सॉरी, आई हैड टू. तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द क्लास आई रियलाइज यस माय बॉडी इज गेटिंग हीटेड, और एटलीस्ट जो मेरा मुंह है वो थक जाता है, गेट्स टायर्ड. सो द रीजन इज द एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड, राइट. व्हेन आई एम स्पीकिंग आई एम प्रोड्यूसिंग साउंड. सो उस साउंड का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बिकॉज आई डू हैव केमिकल एनर्जी इन माई बॉडी, राइट. आई हैव इंटरनल एनर्जी. दैट सेम एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू sound in this form of energy. So basically you cannot say that you can speak, and you must have observed this thing when you are not eating anything. Generally fast के time पे आपको ये चीजें जरूर realize होंगी कि the day you are having fast, उस दिन आप उतनी energy के साथ नहीं बोल पाते हो rest of the days के comparison में, क्योंकि उस दिन आपने खाना नहीं खाया होता है और आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, उतनी कम नहीं, उतनी ज्यादा नहीं होती है. So this is also a form of energy. Now the energy is getting transformed every time when it is moving from one place to another place. ये continuously ऐसे होता रहता है, ठीक है. अब यहाँ पर कुछ आपको जैसे एक्टिविटीज गिवन है. एक ट्यूनिंग फॉक क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ. जनरली जब भी हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक. ये समझने के लिए कि वाइब्रेशंस और साउंड का क्या रिलेशन है, क्योंकि ये इस तरीके का बना होता है कि आपको छोटे से छोटे वाइब्रेशंस भी फील होंगे और छोटे से छोटे साउंड भी सुनाई देगी. सो ये कुछ इस तरीके का होता है. देयर आर टू, इट्स अ थिन स्ट्रिप, बहुत ही पतली स्ट्रिप होती है इस तरीके से, ठीक है. और नीचे एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए. दिस इज अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक. सो एज सून एज यू हिट इट, जब आप इससे किसी को हिट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही थिन स्ट्रिप होती है, सो ये जो स्ट्रिप है ये आपको इस तरीके से मूव करती दिखाई देगी. पहले आपको स्ट्रिप इधर दिखाई देगी, फिर इधर दिखाई देगी, फिर इधर दिखाई देगी. इस तरीके से ये जो स्ट्रिप्स हैं आपको ये वाइब्रेट करते हुए दिखाई देंगे दोनों साइड, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड, राइट. सो इन द फर्स्ट एक्टिविटी दे हैव गिवन यू द आइडिया कि कैसे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. सो द एक्टिविटी इज वेरी इजी. दे हैव जस्ट टेकन अ बॉल, इट्स अ प्लास्टिक बॉल, छोटा सा टेनिस का बॉल लिया उन्होंने, ठीक है. एंड दे हैव हिट इट बाय दिस ट्यूनिंग फॉक. सो जैसे ही आप इसको ट्यूनिंग फॉक से हिट करते हो, व्हाट विल हैपन? दिस विल स्टार्ट मूविंग. इसका तो ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, राइट. दिस विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. और यहाँ पर क्या होगा? इन दिस फॉक यू विल रियलाइज द वाइब्रेशंस. यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस रियलाइज होंगे, ठीक है. सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द साउंड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. This is the idea, or you can say this is the proof which says that vibrations are sound, or sound is vibration, or vice versa. They are exactly same. इसी सेम चीज को आप वाटर के साथ भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट एक्टिविटी में दे हैव शोन अप. सो इट्स जस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर दे हैव टेकन, राइट, विच इज फुल ऑफ वाटर. इसमें आप ये पूरा पानी पे ऐसे 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 भर दो, एंड देन यू हिट दैट. जो आपने ट्यूनिंग फॉक है इसमें आप ऐसे हिट करो इसको,
right? Sound will produce definitely, this will vibrate. Even मैम this ट्यूनिंग you can फोर्क see. से होता क्या है? Sorry, मैम ये ट्यूनिंग फोर्क से होता क्या है? देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बहुत ही थिन मेटल का बना होता है। आप ये कह सकते हो कि ये स्पेसिफिकली आपको एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझाने के लिए ही बना होता है, क्योंकि मैंने इसको कहीं और यूज होते हुए नहीं देखा है। ये ट्यूनिंग फॉर्क ये हमारे लैब्स में हुआ करते थे। कुछ नहीं होता है, आपको साउंड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस ट्यूनिंग फॉर्क को यूज किया जाता है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि भाई वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, हमें देखना है, तो ये जो स्ट्रिप होती है बहुत ही थिन होती है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो आपको साउंड के साथ साथ वाइब्रेशंस भी दिखाई देंगे। बस वही इसी पर्पस के लिए ट्यूनिंग फॉर्क का यूज होता है, एज फार एज आई नो। हो सकता है कि हाई ग्रेड्स में या फिर जब आप लाइक व्हेन यू आर डूइंग समवेयर इन साइंटिस्ट कुछ बनने जा रहे हो, तो हो सकता है इसका कुछ और यूज भी होता हो, आई एम नॉट दैट अवेयर। मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी फॉर योर level it is just for the understanding of that how the vibrations are getting produced and how does it produce sound। ठीक है, ये एक मेटल का बना हुआ होता है बेसिकली, और ये बहुत ही थिन स्ट्रिप होती है, इतना भी आप समझ लो। जैसे आप ये कहो कि ये बॉब क्या होता है, ये कुछ नहीं है आपके केस में, ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि ऑसिलेशंस कैसे होते हैं और एनर्जी कैसे चेंज होती है, सिर्फ ये समझाने के लिए। ऐसे ही ट्यूनिंग फॉर्क सिर्फ ये समझाने के लिए है कि वाइब्रेशंस और साउंड का क्या रिलेशन है, राइट? ऐसे ही आप ये सेम एक्टिविटी जब आप करोगे वाटर के साथ, तो यू कैन सी, जैसे यहाँ पर ये बॉब ने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया था एनर्जी का, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर आल्सो। दिस फॉग इज वाइब्रेटिंग, along with that you can see the vibrations in water also। हालांकि वो थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, उसमें रिपल्स बनते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद दे रिड्यूस, और इसकी जो वाइब्रेशन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि इट सिंपली मेल्ट्स, इट सिंपली इमर्जेस फ्रॉम द वाटर। यहाँ से जो भी इमर्ज होती है, इट मिक्सेस अप विद योर एनवायरनमेंट। ठीक है, हाँ। और इसमें ये जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी ये जो होता है इसको हम हैंडल बोलते हैं। ये जो थिन स्ट्रिप मैंने बोला है इसको हम बोलते हैं प्रोंग, राइट? ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको हम बोलते हैं प्रोंग, बस नाम है वो प्रोंग, जैसे आपका एक नाम है वैसे ही इसका भी एक नाम है प्रोंग। और अब आप जैसे एक प्रोंग को अगर आपने डाला है तब कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, और जब आप दोनों को अपसाइड डाउन अगर ऐसे डाल देते हो, लेट मी शो दिस आल्सो। दिस इज द वाटर, and if you keep this prong ऐसे, then also it will vibrate, and simultaneously you can see that water is also getting vibrated because of the energy produced by this tuning fork, right? So ये सारी एक्टिविटीज किसी और पर्पस के लिए नहीं है, just to show you। यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए that for every object whenever you want to produce sound it should vibrate। Now the question is how does it happen in मैम your mouth? हाँ जी, yes। जो हमारे ये फॉर्क, मैम जो हमारा फॉर्क है, मैम हम जब इसको वाटर में डालेंगे तो मैम ये अपने आप तो वाइब्रेट नहीं होगा, इसको ग्लास के एंड में हिट करना पड़ेगा हाँ साइड बिल्कुल में। बिल्कुल करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, ऐसे ही होगा और क्या हुआ, आपको इसको टच करना पड़ेगा। यही तो आप वाटर सरफेस के ऊपर ही हिट कर दो, जैसे हम पानी के ऊपर हाथ नहीं मारते हैं तो पानी ऐसे बाहर निकल जाता है, आप वैसे करके देख लो। यू जस्ट हिट इट विद द फॉग, तो आपको पानी की वाइब्रेशंस भी दिखाई देंगी और इसका वाइब्रेशन भी दिखाई देगा। उसमें जरूरी नहीं है आप इस ग्लास से हिट करो, यू कैन सिंपली हिट विद वाटर आल्सो। वाटर के ऊपर ऐसे टच करो तो भी आपको रियलाइज तो होंगे ही। डिपेंडिंग ऑन द साउंड, ये भी ध्यान रखना है कि वाइब्रेशंस और साउंड का रिलेशन है, जितनी आप वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उतनी ही साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे टच करोगे तो आपको कोई साउंड नहीं आएगी, वाइब्रेशंस भी बहुत कम होंगी। इफ यू लिटरली हिट इट लाइक दिस, अगर आप इसे प्रॉपर्ली हिट करते हो तो आपको साउंड भी अच्छे से आएगी और जो वाइब्रेशंस है वो भी अच्छे से दिखाई देंगी। सो दे आर रिलेटेड, आप ऐसा कह सकते हो, राइट? So we have so many ideas around us, so many things we have, like plucking,
कोई भी चीज को आप तोड़ते हो, स्क्रैच करते हो, ये देखो, ये जो स्क्रैचिंग वाली साउंड है, अब आप इसमें कहोगे इसमें वाइब्रेशन किस चीज का हो रहा है, तो जहां पे आपको वाइब्रेशन रियलाइज नहीं होता है वहां पे ये समझ लो कि वाइब्रेशंस जो हैं, ये पेपर जिस भी चीज का बना है, इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी इसके अंदर यूज हुए हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होती हर बार, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशंस होता है हर बार इतना ज्यादा नहीं होता, जब बहुत ज्यादा होता है तो हमें रियलाइज होता है, और बहुत ही कम होता है तो हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन वाइब्रेशंस होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन होते हैं। जैसे आपको पता है एक सॉलिड जो भी स्टफ है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। लिक्विड की तरह सॉलिड में स्पेस नहीं होता है, यू नो दिस वेरी वेल। जब आपने सॉलिड लिक्विड पहली बार जब मैटर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज तो पता होगी, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, you know that. And in liquids the molecules are far apart, even in gas they are even far apart, right? So solid के केस में since they are very closely packed, so the atoms they do not have space so that वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं, इतना स्पेस नहीं होता है। सॉलिड में सिर्फ मॉलिक्यूल्स और एटम्स अपनी जगह पे हिल सकते हैं, आप ये कह सकते हो, दे आर ऑन देयर सेम प्लेस, वो एक ही जगह पे हैं एंड दे कैन सिंपली वाइब्रेट एंड दैट्स हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। My question was how the sound is produced, like when you are speaking, जब आप बोलते हैं तो वो sound का production कैसे होता है? What do you think? मैम हमारे vocal cord से हम टकरा वकरा के होता है हम शायद। Yes, correct. किसने आंसर किया? अंकित यादव। Very good. It's correct that if you remember last grade में आपने ये एक chapter पढ़ा था, if you remember, जो vocal cords होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको मिला होगा। तो जो हमारे यहाँ पर जो आपके माउथ के नीचे का हिस्सा है, नेक वाला एरिया है, उसके इंटरनल में जो आपकी जहां से भी ये साउंड प्रोड्यूस होती है वहां पे इस तरीके का दो मस्कुलर फॉर्म बने हुए होते हैं। कि आप अगर प्रीवियस बुक है आपके पास तो वहां पे आपको एक डायग्राम बना के बहुत अच्छे से दिखाया होगा, वहां पे देखना आप, एक बहुत ही छोटी सी कैविटी होती है जिसके दोनों तरफ यू हैव द मस्कुलर पार्ट बना हुआ होता है। सो वेन एवर द एयर इज कमिंग एंड गोइंग, राइट, जो एयर होती है वो इन एंड आउट होती है, सो दिस मस्कुलर पार्ट, ये भी एक थिन पार्ट होता है, इट वाइब्रेट्स, ये वाइब्रेट करता है। सो जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि यू हिट योर ओन हैंड, आप अपने ही हाथ से दूसरे हाथ को टच करके देखो तो आपको क्या लगेगा कि साउंड प्रोड्यूस हुई है लेकिन वाइब्रेशंस नहीं हुई हैं। उस केस में क्या होता है, इंटरनली आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जरूर मूव करते हैं, इसीलिए वाइब्रेशंस कम या ज्यादा हो जाते हैं। और जो आप प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे वोकल कोर्ड्स और वो सारे जो लेरिंग्स होते हैं वहां का पार्ट इस तरीके से डिजाइन होता है कि दैट वी हैव सम मस्कुलर एरिया, दिस मस्कुलर एरिया इज वेरी थिन, बहुत ही थिन होता है, तो व्हेनेवर द एयर इज गोइंग इन एंड आउट इट इज सिंपली vibrating, this muscular part is getting vibrated and that's how the sound is produced. Now इसके बाद there are few questions जो अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहे होंगे, अगर ऐसी बात है तो सबके साउंड क्यों अलग होती है, सबकी साउंड में इतना वेरिएशन क्यों होता है, स्पेसिफिकली गर्ल्स की साउंड में क्यों वेरिएशन होता है एज कम्पेयर टू बॉयज, मेल्स फीमेल्स में बेसिकली। तो दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, तो उसके लिए हमें साउंड की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंस विल स्टडी हाउ the sound, what do you understand by pitch, let me just write all the topics जो हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज में हम पढ़ने वाले हैं पिच के बारे में, ये क्या होता है। इसके बाद इसके अलावा 2-3 टॉपिक और हैं जो आपकी बुक में नहीं है फिलहाल, बट आई नो दैम, टोन, एक टोन भी होता है। इसके बाद एम्पलीट्यूड, व्हाट इज दैट, देन वी हैव स्पीड एंड द रिलेशन बिटवीन देम, फ्रीक्वेंसी भी होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये भी होते ही हैं, दे आर ऑलवेज रिलेटेड, right? So these are the cases actually which we are going to study to find out the properties of the sound. How do we say that pitch is high, when do we say that amplitude is high? Okay, let me give you one hint, इसके बारे में आप खुद थोड़ा सा स्टडी करके आएंगे। आपके पास 2 केसेस हैं, ठीक है, there is a lion, एक lion है and there is a bird.
आप एक बर्ड ले सकते हो. If I